بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. جیسے کہ درس قرآن میں بارہا یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کلام اللہ قرآن پاک یہ ہر آدمی کے لیے اس کی زندگی اور اس کی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک بہترین چراغ کے مانند ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو اس کتاب میں دیکھ سکتا ہے اور اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے. لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ دنیاوی علوم کو اور دنیاوی احوال کو معلوم کرنے کی کوشش انسان جتنا کرتا ہے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش اتنا نہیں کرتے. اگر اس کتاب کو آدمی اتنا سمجھنے کی کوشش کرے جتنا دنیا کے احوال کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کی باتوں کو دنیا کے علوم و فنون کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنا اگر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ دونوں میں کامیابی کر کر دکھلائیں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ہر اعتبار سے. جیسے میں بتایا یہ جو کتاب ہے گزرے ہوئے لوگوں کے احوال کو بھی بیان کرتی ہے موجودہ احوال کو بھی بیان کرتی ہے اور آنے والے احوال کو بھی یہ کتاب بیان کرتی ہے. اب جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اکثر و بیشتر ملک میں دنیا میں یا ہمارے ساتھ جو احوال چلتے رہتے ہیں وہی مضامین ہمارے ساتھ چلتے ہیں. تو آج بھی کچھ مضامین موجودہ حالات پر اور موجودہ وقت پر جو وقت کا تقاضا ہے اسی کے موافق کچھ باتیں آنے والی ہیں. لیکن افسوس کیا ہے دوسری بات کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کھول کر دیکھنے کا وقت نہیں ہے. سمجھنا تو دور کی بات, پڑھنا تو دور کی بات, کھول کر دیکھنے کا وقت نہیں ہے. آج کوئی بھی آدمی ہو, پچھلے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نیوز پیپر اخبار پڑھنے کا بڑا رواج تھا. باقاعدہ لائبریریاں ہوا کرتی تھی, جا کر وہاں پر پڑھ کر آتے تھے. اور نیوز پیپر ہو یا اخبار ہو کوئی بھی چیز ہو, بس اوقات ہوٹلوں کے پاس پیپر رکھے ہوئے ہوتے تھے, اس کو تو چائے پینے جائے یا نہ جائے اخبار پڑھنے کے لیے بعض لوگ جاتے تھے. تو یہ طلب جب آدمی کے اندر آ جائے گی تو حالانکہ اس کو جانا ہے وہاں خبر پڑھنے کے لیے, تو ایک طلب اور ایک چاہت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کا کلام سمجھنا ہے, مجھے اللہ کے کلام کو اپنے اندر اس کے جو دقائق ہے, اس کے معانی ہے, اس کے مطالب ہے, مجھے سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ راستوں کو کھولے گا. ایک تو ناظرہ پڑھنا ہے, دوسرا ترجمہ پڑھنا ہے, تیسرا تفسیر کو سمجھنا ہے کسی عالم کی نگرانی میں. صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے, کسی کی نگرانی میں پڑھنا ضروری ہے, ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں, اسی قرآن سے بہت ساروں کو ہدایت مل جاتی ہے. یہ قرآن ایسا ہے جیسے پانی ہے, اب بہت سارے لوگ اس میں تیر کر مزہ اڑاتے ہیں, بہت سارے لوگ اس میں کود کر مر جاتے ہیں. تو تیرتا وہی ہے جس کو تیرنا آتا ہے. اب دوسروں کے تیرنے کو دیکھ کر تیرنے نہ آنے والا اگر کود جائے گا تو اس کی جان کیا ہو جائے گی, چلے جائے گی. کار چلانا ہے تو کار چلانے کو سیکھنا پڑتا ہے. تو اگر آدمی سیکھ کر چلائے گا اس کی جان بھی حفاظت, پیچھے بیٹھنے والوں کی جان بھی محفوظ. سیکھے بغیر چلائے گا اس کی جان بھی خطرے میں, پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کی جان بھی خطرے میں. قرآن کا حال یہی ہے. اللہ نے خود فرما دے یضل بہ کثیرا. ارے بھائی اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں.
वयहदी बिही कसीरा, और बहुत सारों को हिदायत भी मिल जाती है। तो एक तो नाजिरा कुरान पढ़ना, दूसरा उसके मतलब को पढ़ना, तर्जुमा किसी भी जुबान में पढ़ सकते हैं, कुरान को सीखना जरूरी है। और तीसरी चीज है तफसीर को पढ़ना, या फिर ऐसे दरसे कुरान में बैठकर समझने की कोशिश करना। मैं बताता हूं ना, बारहा मैं ये जुमला आजकल मैं बहुत कह रहा हूं, अल्लाह के ये हकीकत भी है, अल्लाह सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। ये जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब हो या व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जितने भी हो, इन पर जो दीनी मज़ामीन आते हैं, चलो एक व्हाट्सएप ले लीजिए, व्हाट्सएप तो हर लोग इस्तेमाल करता है, हर आदमी के पास व्हाट्सएप तो मौजूद है। इसमें जो पोस्ट आते हैं, इसमें जो स्टेटस रखा जाता है, इनको देखकर भी अगर आदमी दीन पर चलना चाहे तो वो मुत्तकी वलीउल्लाह बन जाएगा। लेकिन हर आदमी क्या समझ रहा है बोलो? व्हाट्सएप में आने वाले फोटोज, पोस्ट और जो उसमें स्टेटस वगैरह आते हैं, वो रखने वाला भी इस नियत से रखता है किसी औरों के लिए। स्टेटस में रखा अभी, तो आदमी क्या करता बाद में? कौन देखे कि देखता, कितने लोग देखे कि देखा, 10 लोग देखे, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 100 लोग देखे। अब देखने के बाद भी उसका इरादा क्या रहता बोलो? मैं जिसके लिए रखा हूं उन्हें देखा कि नहीं। ये एक बड़ी बीमारी। बाज लोग जो स्टेटस रखते हैं बहन के लिए रखते हैं, बहन के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो बहन के लिए स्टेटस रख दिया, भाई के साथ कुछ ऊंच नीच, अब ये देख रहा है, अरे 100 लोग देख दिए लेकिन मैं मेरे भाई के लिए रखा हूं, भाई अभी तक देखा नहीं। तो इसकी वजह से इसका फायदा नहीं हो रहा। अब स्टेटस में रखा तो स्टेटस में रहने वाले मज़मून को पहले इस नियत से रखना कि मैं इस पर अमल करूंगा, फिर अल्लाह ताला आपके स्टेटस देखने वालों में उस पर अमल करने की तौफीक देने का फैसला करेंगे। अब जब स्टेटस में रख रहा हूं दूसरों के लिए कि भाई वो उसके लिए उसके लिए उसके लिए, तो वो उसके लिए ही रह जाएगा, ना तुझे तौफीक मिलेगी अमल की, ना उनको तौफीक मिलेगी अमल की। तो बहरहाल तो ये जितने भी सोशल मीडिया है, इसमें भी कई सारे लाखों करोड़ उलमा के बयानात है, तफासिर है। हमारे पास मोबाइल के लिए 8-8, 9-9, 10-10 घंटे है, लेकिन आज तक कलामुल्लाह समझने के लिए या अल्लाह के नबी की सीरत पाक को समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। 100 मुसलमान एक जगह जमा हो जाए, कितने मुसलमान? 100 मुसलमान। कुरान की बुनियादी बातों का अगर सवाल किया जाए तो उसमें 10 लोग भी जवाब नहीं दे पाएंगे। कुरान में कितने पारे हैं, कितने आयत है, कितने सूरे हैं, कितने मदनी है, कितने मक्की है, सब पहली आयत कौन सी है, आखिरी आयत कौन सी है, ये कुरान की बुनियादी की बातें हैं। ये 100 लोगों में से 10 लोग बता देंगे तो बड़ी कामयाबी है मुसलमानों के लिए। ये हुआ कलाम पाक के सिलसिले में। इस्लाम के मुतालिक पूछा जाए, पहला नबी कौन, आखिरी नबी कौन, और अल्लाह के नबी की बेटियां, सीरत के मुताबिक पूछा जाए अल्लाह के नबी की बेटियां कितने थे, बेटे कितने थे, मक्के में कितने साल रहे, पूरी उम्र कितनी है, कब इंतकाल हुए, कब पैदा हुए, क्या बोल पाएंगे 10 मुसलमान 100 में से? नहीं बोल पाएंगे। अरे हमारे मुसलमान टाउन में, मैं तो मंडल और खरियों की बात नहीं कर रहा हूं, शहर अनंतपुर, सिर्फ हमारा अनंतपुर ही नहीं है, पूरी दुनिया का हाल ही है कि टाउन में रहने वाले लोगों को जब बाज ऐसे लोग हैं जब उनसे नबी के बारे में सवाल किया जाता है तो वो सोचने में पड़ जाते हैं कि भाई नबी किसको कहते हैं। नबी का नाम तो बोलना दूर की बात, नबी का मतलब क्या है वो सोचने में पड़ जाते हैं। तो फिर उम्मत कहां है? तो बताइए, जब ऐसी उम्मत की हालत है तो फिर कामयाबी कहां से मिलेगी? तो जिंदगी में तब्दीली कहां से आएगी? तो बहरहाल अब यहां जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो मजमून चल रहा है, ये मजमून क्या चल रहा था कि भाई बाज नेमतें दुनिया की ऐसे हैं जिनकी नेमतों के पीछे आदमी पड़ता है नाहक तौर पर हासिल करने के लिए, हक को कबूल नहीं करता। क्यों? दुनियावी फवाइद के लिए, माल के लिए, औलाद के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए, जमीन के लिए, सवारी के लिए, चौपायों के लिए, इनके पीछे पड़कर हक कबूल नहीं करता, नाहक का साथ देता है। उसके मुकाबले में वो लोग जो हक का साथ देते हैं और वो जो नियामतें उनको है दुनिया की, वो खत्म होने वाली, उन नियामतों के सामने साहिबे नियामत मर जाएगा या नियामत पहले खत्म हो जाएगी। वो जो चीजें हैं उन चीजों के सामने खुद आदमी मर जाएगा या आदमी के सामने वो चीजें हलाक हो जाएगी, दोनों में से एक तो पक्का। तो उसके बाद अल्लाह ने दूसरी जो चीजें बताया, वो चीजें कैसी हैं? ना वो चीजें खत्म होंगी ना चीजों वाला खत्म होगा, हमेशा हमेशा के लिए खालिदीन फीहा,
वही फरमाना मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फिहा, हमेशा के लिए, कभी एंडिंग, नो एंडिंग, इंफिनिटी, हमेशा के लिए रहेंगे वो नियामतें। अब अल्लाह ताला उनकी एक दुआ का तस्करा किया था जो मैंने आपको आखिरी दर्स में बताया था, तमहीदी तौर पर बताने के लिए उसका कुछ तस्करा कर देता हूं। ये हम लोगों को समझने की बात, ये दुआ ईमान वालों की है और ईमान इतनी मजबूत और इतनी मानेखेज और इतने दिल को छूने वाली दुआ है, इसके मतलब को समझेंगे तो दिल की आंखें और कान खुल जाएंगे। सुनना दिल के कानों से है, बताया ना, जिस्म के जैसे कान है, जिस्म के जैसे आंख है, हाथ है, पैर है, दिल के भी सब है। दिल के आंख बन गए तो जाहिर आंख बन जाएंगे, दिल के कान बन जाए तो हमारे जिस्म के कान बन जाएंगे, दिल के हाथ बन गए तो हमारे जाहिरी हाथ बन जाएंगे। तो दुआ क्या है देखो, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह इनको नेमतें जो देगा जन्नत की नेमतें हमेशा हमेशा के लिए। दुआ करने वाले क्या है, क्या कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार हम ईमान लेकर आए आप पर। क्या बोल रहे हैं, ईमान लेकर आए आप पर। अब यहां ये तस्कीरा नहीं कर रहे कि अल्लाह हमने नमाज पढ़ा, रोजा रखा, ज़कात दिए, हज किए, दिन का काम किए, फला किए, फला किए, फला किए, तस्कीरा कर रहे क्या? नहीं। तो मालूम हुआ अल्लाह के पास बख्शिश का कोई वजह है, कोई वजह है और बख्शने का कोई सबब है, तो वो ईमान है। वो ईमान है कि ऐसा है कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक किए बगैर, दाऊद तबलीग हम लोग बारह सुनते हैं, राई के दाने के बराबर भी, राई के दाने के बराबर ही है। अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक किए बगैर आएगा। इसीलिए वहां जो पेश किया जा रहा है ईमान को ही है कि अल्लाह हम तुझ पर ईमान लेकर आए। नमाज पढ़े लेकिन नमाज जैसे तुझे चाहिए वैसा है कि नहीं मालूम। रोजा रखे जैसा तुझे रोजा होना है वैसा रखे कि नहीं मालूम नहीं। ज़कात दिए लेकिन जैसे ज़कात देना है दिए नहीं दिए मालूम नहीं। हज किए तुझे कबूल हुआ तो कबूल किया नहीं मालूम नहीं, लेकिन तेरी जात पर ईमान लेकर आए हैं इसलिए इसको कबूल फरमा ले। इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, इसलिए हमारे गुनाहों को बख्श दे। वक़िना अज़ाबन्नार, ये है जहन्नम से जिसको बचा लिया गया, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। वही मांगा जा रहा है, जहन्नम से हमको बचा ले। अब इनकी जो सिफातें हैं इसके बाद तस्करा आ गया था, ये सब्र करने वाले होंगे, सच बोलने वाले होंगे, इबादत गुजार होंगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होंगे और सहरी के वक्त में इस्तिग़फ़ार करने वाले। यहां पर भी मैं आपको एक नुक्ता बताया था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके जो भाई बिन्यामीन थे, जब उनके वालिद साहब के पास तौबा इस्तिग़फ़ार करने के लिए आए तो जब उन्होंने दुआ की दरखास्त की कि आप हम लोग गलती कर दिए, हम हजरत यूसुफ को कत्ल करने चले गए थे और छोटे भाई के साथ भी बुरा सलूक किया, आप हमारी बख्शिश कर दीजिए। तो यहां पर यह बात बयान की गई है, उलमा ने लिखा है कि सौफा अस्तग़फ़िरु लकुम, कि मैं अनकरीब तुम्हारे मुताल्लिक अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करूंगा, तुम्हारी तौबा के बारे में अल्लाह से दुआ करूंगा। क्या बोले, अरबी में लफ्ज़ सौफा आता है अनकरीब, थोड़ी देर के बाद। अनकरीब का मतलब थोड़ी देर, सौफा आता है। अस्तग़फ़िरु करता हूं या करूंगा दोनों माने आएंगे, लेकिन सौफा आ गया तो कुछ देर के बाद ही। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का थोड़ी देर के बाद कहना इस बात का इशारा है कि मैं तुम लोगों के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार तहज्जुद में करूंगा, क्योंकि तहज्जुद में जरूर दुआ कबूल होती है। वो है यहां पर एक सिफत जन्नत में जाने वालों की सिफत, वो सब्र करने वाले, और सब्र की 3 किस्में हैं वो बता दिया था। सच बोलने वाले हैं और इबादत गुजार, इबादत करते, फराइज नहीं नवाफिल की इबादत अल्लाह के यहां करने वाले, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, और तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करने वाले। यहां एक सच्चाई के बारे में एक बात आई तो मैं बताता चलूं। सबसे बड़े सबसे बड़ा सच्चा कौन है? अल्लाह है। सच बोलना अल्लाह की सिफत है और झूठ बोलना अल्लाह के अपोजिट है। तो ये झूठ बोलना जब बंदे के अंदर आ जाएगा, आजकल देखे होंगे आप लोग, छोटे छोटे बच्चों में झूठ बोलने की आदत पैदा हो रही है और पैदा हो गई है। होने की वजह क्या है? इसकी वजह बड़े हैं। बड़ों की वजह से छोटे झूठ बोलना सीखते हैं।
छोटे बच्चे, मैं 1.5-2 साल के बच्चों की बात कर रहा हूं, उनके अंदर आदत पैदा हो जाती है झूठ बोलने की। ना जो चीज नहीं है उसको बोलने की वजह से वो झूठ हो जाएगा और बच्चों के अंदर वो बैठ जाएगा कि भाई हाँ ये भी एक कलाम है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक बोलने की चीज है, तो ये भी झूठ है, मजाक के लिए भी झूठ। जैसे अल्लाह के नबी ने एक मरतबा बैठे थे, एक बच्चे की एक वालिदा जो है बच्चे को बुलाए, नाम भूल रहा हूं मैं, तो बुलाए, तो जैसे ही वो बच्चा आया वो बुला लेके अंदर चले गए। अल्लाह के नबी ने बाद में पूछा, तुम्हारे बच्चे को बुलाए ना, हाथ में कुछ पकड़ी हुई थी, तुम जब बच्चे को बुलाए तो वाकई में कुछ देने का इरादा था या नहीं? तो उन्होंने कहा मैं खजूर देने का इरादा की थी और दे दी। कहा अगर तुम खजूर बुलाते और खजूर ना देती, कोई चीज ना दिए बगैर ऐसे ही बुलाती, तो तुम्हारा नाम झूठों में लिखा जाता, तुम्हारा नाम झूठों में लिखा जाता। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी लिखा है कि हदीस लेने के लिए एक आदमी के पास गए तो देखा कि एक आदमी इसे किसे बुला रहा है, घोड़े को बुला रहा है, उसके मुंह पर थैली बांधी जाती है ना, बांधी जाती है खाने के लिए, वो थैली पकड़ के बुला रहा है। तो जैसे ही वो आया पकड़ लिया, उसको खाने के लिए नहीं दिया, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहां से वापस चले गए। अरे भाई जो आदमी बेजुबान जानवरों को धोखा दे रहा है वो सही हदीस बात बोलेगा, इसकी क्या गारंटी है? छोड़कर चले गए। तो ये है सच्चाई। तो यहां तक बात हो गई थी। अब जो मजमून शुरू हो रहा है ये बहुत अहम मजमून है, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। अब यहां पर देखिए तौहीद, इस सूरह आले इमरान की बुनियाद ही तौहीद है। अब आप लोगों को फिर 2-2.5 महीने पीछे जाना पड़ेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कायदा है, वो लोग समझे थे कि भाई अल्लाह तीन है, खुदा तीन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बड़ा वफ्द आया था, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूरा मामला तहकीक किए थे, बात किए थे, वो तमाम चीजें जो गुजरी है, इस सूरत की बुनियाद ही तौहीद है। अब यहां पर वही बात शुरू हो रही, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा। तो हमारे आसमानी जो मज़ाहिब है, यहूद है, नसारा है, इस्लाम है, यहूदियत, नसरानियत, इस्लाम, इन तीनों मज़ाहिब की बुनियाद तौहीद है। और तौहीद क्या है? एक अल्लाह को मानना। दुनिया में रहने वाले मुसलमानों से जो मुखालफत की जा रही है, इनके साथ जो बुरा सुलूक किया जा रहा है, इसकी वजह एक ही है। वो क्या है कि ये लोग एक अल्लाह को मानते हैं। आज ही नाउजुबिल्लाह अगर ये ऐलान किया जाए कि भाई मुसलमान भी आपके तरह 2-3 खुदा मानने के लिए तैयार है, तो पूरा इख्तिलाफ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये जो पूरी चीजें बैठी हुई है किस पर है? तौहीद पर है। इसीलिए मालूम हो गया है कि मुसलमान सब कर सकते हैं, तौहीद को नहीं छोड़ सकते। तो इनडायरेक्ट आने वाली नस्लों में तौहीद को कमजोर किया जा रहा है, अकीदे तौहीद को। इसलिए मैं बारहा बताता हूं आप लोगों को, बताया ना मैं, अब जो वक्त का तकाजा है वही मजमून है तौहीद के बारे में। क्या है, आप लोग आज तक किसी भी जगह, मैं जो पूछता हूं गौर से सुनिए, बहुत अहम बात बता रहा हूं, कभी भी आप लोगों ने किसी जगह पर देखे हैं तहफ्फुज़ ईसाइयत? कोई जलसा देखे हैं आज तक? अरे देखेंगे भाई, तहफ्फुज़ ईसाइयत यानी ईसाइयों के मजहब की तहफ्फुज़ के लिए जलसा चल रहा हो, या फिर तहफ्फुज़ हिंदुइज्म, कहीं जलसा हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है कि भाई उनका जो है, जैसे मैं बताता हूं बार बार कि वो अगर 3 खुदा मान रहे हैं तो और एक खुदा मानेंगे तो भी उनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 करोड़ मानने वाले 30 करोड़ मान लेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस्लाम का अकीदा ऐसा है कि हमारा है ही एक खुदा, उसके साथ नहीं, एक जात को नहीं, उसके सिफात में भी अगर किसी को शरीक करेंगे तो ईमान चला जाएगा। ये इसीलिए इस बुनियाद को क्या किया जा रहा है? खोखला किया जा रहा है। आज पूरी दुनियावी तालीम में ये साजिशें हो रही है, अकीदे तौहीद को कमजोर किया जा रहा है। इसी बात की गवाही अल्लाह यहां दे, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह खुद गवाही दे रहा है, क्योंकि अल्लाह से पहले कोई है नहीं। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वही जात पहले इस बात की गवाही दे रही है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वही हकीकी माबूद है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही
इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। ये एक आयत है। इस आयत में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, हमने आपसे पहले जितने नबियों को भेजा है, तमाम नबियों के पास नूही जमा मुतकल्लिम का सेगा है, हमने वही भेजी, हमने वही भेजी, हमने, समझ रहे हैं ना, प्लूरल है, हमने वही भेजी। नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि सिर्फ मेरी इबादत करो। देखो यहां समझो, नूही में क्या है, प्लूरल है। इबादत का जहां तस्किरा आ गया, अना फअबुदून, मेरी इबादत करो, सिंगलर आ गया। अंजलना, हमने नाजिल किया, क्या, पानी। खलकना, हमने पैदा किया, प्लूरल। नज़लना, हमने नाजिल किया, ये सब चीजें क्या है, प्लूरल है। लेकिन इबादत का जहां आया है, वहां कभी भी प्लूरल का सेगा नहीं आया, प्लूरल का वर्ड नहीं आया, सिंगलर। अब यहां पर ही देखिए, नूही, हमने वही भेजी, हमने, लेकिन अना फअबुदून, मेरी इबादत करो। तो अकीदे तौहीद इतना मजबूत अकीदा है कि इसमें कभी भी कमी बेशी नहीं आना। अब यहां पर ही हो रहा है, तो इसलिए अल्लाह गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वल मलाइका, फरिश्ते। अब अल्लाह तबारक व ताला से सबसे ज्यादा करीब मखलूकात में सबसे करीब मखलूक कौन है? अरे कौन है भाई? फरिश्ते हैं, जो नूर से पैदा किए गए, जो हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। दो सिफतें हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह के हुक्म को फौरी तौर पर अदा करते हैं, फौरी बजा लाते हैं। दो सिफतें उनके अंदर, वो गवाही दे रहे हैं कि हां अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो आप देखिए, सोचना चाहिए, अकीदे तौहीद पर हमले हो रहे हैं। अकीदे तौहीद पर मैं आप लोगों को बताता हूं, चूंकि अभी तकाजा भी है, जहां सुनने को कारगुजारियां आती है कि अगर हम लोग हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत नहीं करेंगे, अकीदत तौहीद की हिफाजत नहीं करेंगे, वाकयात कैसे कैसे पेश आते हैं। देखिए, एक लड़का जिनके घर में पहले से दीनदारी है, बाप दीनदार दावत के काम में लगा हुआ है, मां दीनदार दावत के काम में लगी हुई है, स्कूल में जाने वाला बच्चा रात को खाना खाते खाते मां से कह रहा है कि अम्मी जान, अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, तो फिर क्यों आप बाहर अपने चेहरे को छुपाकर फिरती हो? क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, तो फिर क्यों आप बाहर अपने चेहरे को छुपाकर फिरती हो? अब ये बच्चा शादी होने के बाद अगर हमने इसके ईमान के अमल की हिफाजत नहीं किए, तो कल क्या होगा? अगर किसी दीनदार घराने की लड़की को इसको दे दिए, उसकी डिग्री को देखकर, उसके पढ़ाई को देखकर, उसके जॉब को देखकर अगर दे दिए, तो कल वो अपनी बीवी को कहेगा कि कल मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेरा बर्थडे है, तो कल उनके सामने तुमको सवर कर मेकअप करके आना है। बोलेगा नहीं बोलेगा? ये वाकयात पेश आ रहे हैं। तो ये कहां हो रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को जैसा दीन की जैसे दुनियावी तालीम देने की फिक्र हमारे अंदर है, दो, जितना दुनियावी तालीम पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाओ, जितना उसको बड़ी डिग्री देना चाहते हैं दो, जो उसे बनाना चाहते हैं बनाओ। लेकिन हम लोगों को, हमारी जो पटरी है, ट्रेन देखे हैं, पटरी पर चलती रहेगी तो बराबर रहेगी, उतर गई तो लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान, हजारों की जाने जाएंगी। ऐसे ही है कि इस्लाम तौहीद से हटकर पटरी से अगर निकल गया, बच्चा हो बड़े हो, तो फिर वो क्या हाल होता नहीं मालूम। आज वही हाल चल रहा है। इसलिए अकीदा तौहीद के बारे में बड़ा मजबूत अकीदा है इस्लाम का, इसमें कमी बेशी हरगिज नहीं आनी चाहिए। व उलुल इल्म, और इल्म वाले भी गवाही देते हैं। देखिए, हकीकी तौर पर इल्म रखने वाले, अकल के एतबार से भी और हर एतबार से ये बात साबित है कि दुनिया को चलाने वाला एक होगा तो ही दुनिया चलेगी, कई सारे हो तो दुनिया चल नहीं पाएगी। इसकी मिसालें आप लोग देख सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो या किसी भी कॉलेज हो, स्कूल हो, डिपार्टमेंट हो, हेड कितने होते हैं? एक होते हैं, दो तीन होते हैं? एक ही तो होता है वो डिपार्टमेंट में। अगर एक ही डिपार्टमेंट में दो तीन तरह के हेड हो जाए,
या फिर अलग अलग किस्म के, चलो तुम सब लोग मिलकर इसको संभालो, सब लोग इसमें क्या है, प्रेसिडेंट है, सब लोग इसमें बड़े हैं, तो फिर क्या हाल होगा? निजाम चल पाएगा? ये अकल में आने वाली बात है। तो यही बता रहे हैं, इल्म वाले भी गवाही देते हैं कि अल्लाह एक ही है। क़ाइमन बिल क़िस्त, ये अल्लाह की एक सिफत है, इंसाफ के साथ दुनिया को कायम किया है। अल्लाह ने दुनिया को कैसे कायम किया है? इंसाफ के साथ। इसलिए इंसाफ का जुमला यहां क्यों आया मालूम? ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया, उनका अकीदा है, हमारा नहीं। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे हिसाब से कहा आसमानों में उठा लिया, क़यामत के करीब आएंगे इंशाअल्लाह। तो अब ये जो है अकीदा इनका क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया, जुल्म किया गया, उनकी जान ले ली गई, ये तमाम ईसाई लोगों के गुनाहों का कफारा अदा कर दिए। जितने ईसाई है जो भी गुनाह करेंगे, अब उनको गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी, उसकी सजा किसको मिल गई? ईसा अलैहिस्सलाम को मिले। क्या इंसाफ है? कोई करे कोई भुगते, इंसाफ है? नहीं है। इसलिए अल्लाह ने यहां सिफत बयान कर दिया, अल्लाह ने दुनिया को इंसाफ के साथ कायम किया है। इसी आयत के तहत में मैंने आप लोगों को बताया था, अल्लाह ने जमीन को बनाया सिर्फ मुसलमानों के लिए, अल्लाह ने बारिश को बरसाया सिर्फ मुसलमानों के लिए, अल्लाह ने हवाओं को चलाया सिर्फ मुसलमानों के लिए, अल्लाह ने जमीन से गल्ले को उगाया, सूरह नबा में तमाम चीजें बयान किया था मैं तफसील के साथ। सबको दे रहा है, नहीं दे रहा फवाइद, सबको दे रहा है। ये है खुदा की सिफत, ये है अल्लाह की सिफत, ये है इंसाफ पसंद बादशाह की सिफत। यानी कि उनको तमाम जरूरियात को दे, मोहलत दे, उनको इख्तियार दे दे, और बाद में जो इंसाफ का दिन है, उस दिन अदल के लिए, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन फैसले का हक किसको है? मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक उस दिन फैसला करेगा, ये इंसाफ है। यहां फैसला करेंगे तो इसलिए मुल्क में हो, दुनिया में हो, अगर किसी को इख्तिदार मिल गया, कोई बादशाह बन गया, कोई प्रेसिडेंट बन गया, कोई बड़ा ओहदे पर आ गया, मुल्क संभालने का, उसको संभालने की ताकत मिल गई, यहां तकाजा यही है कि अल्लाह देखते हैं कैफ तअमलून, कि अल्लाह ने तुमको ये ताकत दी है तो तुम कैसे अमल कर आओगे, अल्लाह देख रहे हैं। यह है इंसाफ का तकाजा। अरे भाई मुझे हुकूमत मिल गई, मैं जो चाहे करूंगा, नहीं, इंसाफ पर चलना है। वो अल्लाह क्या करेंगे, उसका इम्तिहान ले रहे हैं। क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। यहां पर एक बात बताई जा रही है कि देखो, ये फिर अल्लाह बता रहे हैं, इंसाफ के साथ कायम करने वाले अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अच्छा, अब यहां पर भी एक आखिरी सिफत अल्लाह की बयान की जा रही है, अजीज है, इख्तिदार है। उसको करने के बाद किसी को हक नहीं है कि अल्लाह को सवाल करे कि अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया। कोई सवाल कर सकता क्या? अल्लाह को कोई सवाल नहीं कर सकता। जबरदस्त ताकतवर है, गलबे वाले हैं, हकीम भी है। कौन से अमल को कब करना, कौन से अमल को कैसा करना, यह अल्लाह को पूरे तौर पर मालूम है। बहरहाल, तो इसके बाद जो जुमला आ रहा है, अब मालूम हो गया कि अल्लाह कौन है, अल्लाह ने दुनिया को कैसे कायम किया, इंसाफ के साथ कायम किया, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। तो फिर जब ये सब चीजें मालूम हो गई, तो कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचने वाला है, उसको यहां बयान किया जा रहा है नेक्स्ट आने वाली आयत में। अब दुनिया में बहुत सारे लोग अकीदा ये रखे हैं, वहदत अदियान। क्या जुमला है? वहदत अदियान का अकीदा आज दुनिया में आम हो रहा है। क्या मतलब? रास्ते अलग अलग है, मंजिल सबकी एक है। चाहे जो जिसको चाहे पूजा करे, जो जिसको चाहे अपना खालिक माने, जो जिसको चाहे अपना खुदा माने, सब लोग जाएंगे कहां? एक ही खुदा के पास। ये इसको कहते हैं वहदत अदियान। दीन अलग अलग लेकिन सब एक ही है। यह अकीदा बातिल है। मुसलमान अगर ऐसा अकीदा रखेंगे तो इनका ईमान खत्म हो जाएगा। उसकी मैं मिसाल आप लोगों को देता हूं। एक आदमी मक्का जाना चाह रहा है। मक्का किधर है? मक्का इधर है, किबला है ना, तो मक्का इधर है। एक आदमी मक्का जाना चाह रहा है और रुख इधर किया हुआ है, वेस्ट को जाना, ईस्ट को जाना। किधर जाना? वेस्ट को जाना, ईस्ट चाइना की तरफ जा रहा है। तो अब वो अब जैसे ये अकीदा रखने वाले हैं कि भाई रास्ता किधर ही हो, जाना सबको एक ही जगह है,
وہ اللہ کسی کو مانے, وہ خدا کسی کو مانے, لیکن ملنا سب کو ایک ہی جگہ ہے, منزل ایک ہی ہے. تو اب یہ جو مکہ جانا چاہ رہا ہے لیکن ڈائریکشن ایسٹ کی طرف ہے, تو جیسا جیسا وہ مکے کی طلب میں ایسٹ کی طرف جائے گا, مکے کے قریب ہو رہا ہے, دور ہو رہا ہے, دور ہو رہا ہے, قریب ہو رہا ہے, دور ہو رہا ہے. کیا وہ کبھی مکے کو پہنچ پائے گا؟ ایسا ہی ہے کہ جو آدمی دین اسلام کو اور اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنا چاہے گا وہ نہیں پہنچے گا. اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں آ رہی ہے, اس کو میں انشاءاللہ اگلے پیو کو بیان کروں گا. دوسرا جو تقاضا ہے وہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ بچوں کے اسکول کی چھٹیاں آ رہی ہیں. ابھی تو 10th والوں کی اور انٹر والوں کی چھٹیاں ہو گئی, اور بہت سارے بچوں کی, کسی کی 15 کو, کسی کی 20 کو, کسی کی 25 کو ہے. سال بھر ہمارے بچے کیا کرتے؟ صبح میں ٹیوشن, شام کو ٹیوشن, صبح سے لے کر شام تک اسکول, اور جب گھر میں آتے تو موبائل, ٹیب, ٹی وی, لیپ ٹاپ, اس کے پیچھے پڑ جاتے. آج میں پرسوں بتایا بچہ 15 کلو کا ہے, 7-8 کلو کی کتابیں ڈھو لے کے جاتا ہے. بچہ 15 کلو کا ہے, اس کے آدھے کلو سے آدھے وزن سے بھی زیادہ کتابوں کا بوجھ. تو آج بھی بہت سارے لوگ, پرانے لوگ ہیں, وہ بھی انجینئر بنے, وہ بھی ڈاکٹر بنے, وہ بھی سب بنے, لیکن آج کے جیسا بوجھ ان بچوں پر نہیں تھا. ہم لوگ بھی پڑھ کر آئے لیکن ایسا بوجھ ہمارے اوپر بھی نہیں تھا. اتنا ڈپریشن میں بچے چلے جاتے, اتنا فورس ان پر ڈالا جاتا, اتنا پریشر ان پر ڈالا جاتا کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. چلو پڑھو 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 پڑھو, یہ حال ہو گیا. تو سال بھر اسی میں گزرتا. تو اب آنے والا سمر کیمپ بھی بسا اوقات آج بھی کیا ہو گیا, چھٹیوں میں بھی چھوڑ رہے نہیں. 10th کو جانے والے ہیں تو ان کو ابھی سے کلاسز شروع, تو سیکنڈ ایئر جانے والے ہیں تو ان کو ابھی چھٹیوں سے کلاسز شروع. تو ایسا ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ کے لیے سال بھر جن کو نورانی قاعدہ پکڑنے کی توفیق نہیں ملی, جن لوگوں کو اردو قاعدہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی, ایسے بچوں کو ان چھٹیوں میں سمر کیمپ کو بھیجنے کی کوشش کرے. بہت جگہ شروع ہو رہا ہے, مساجد میں 10 بجے سے 1 بجے تک, یا 11 سے 12 تک, جیسا بھی ہو, یا شام کو ہو, صبح میں ہو, جہاں جہاں بھی شروع ہو رہا ہے اپنے بچوں کو بھیجے. لڑکیوں کو بھی بھیجے, لڑکوں کو بھی بھیجے. بڑا وقت کا تقاضا ہے. حضرت مولانا سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آج کے ادارے جو اسکول ہے, کالج ہیں, اپنے بچے جا کر آنے کے بعد, شام کو آنے کے بعد, تو آپ لوگ روزانہ اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاؤ. روزانہ آنے کے بعد گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا ایمان باقی ہے یا نہیں. ایسے عقیدے بہت سارے اسلام کے باطل عقیدے پیدا کیے جا رہے ہیں. تو اسی لیے سمر کیمپ کا فائدہ اٹھانا ہے. ہمارے مدرسے میں بھی لڑکیوں کے لیے ہے, 10 بجے سے 4 بجے تک, اگر کوئی بھیجنا چاہے تو بھیج سکتے ہیں. ہاسٹل بھی ہے ہمارے پاس, جیسے کہ میں رمضان میں آپ لوگوں کو بتایا تھا. 80 طالبات کو لینے کا ارادہ تھا, 110 داخلے ہوئے ہیں. اب بھی فون آ رہے ہیں کہ ہمارے بچی کو لے, ہمارے بچی کو لے, لیکن جگہ نہیں ہے. فل ہو گئے, پورے داخلے فل ہو گئے. ابھی چھٹیاں 25 کو ہے. 20 پر 4 تاریخ سے, 20 پر 5 تاریخ سے 30 پر 1 تاریخ تک ایڈمیشنز ہوئے ہیں. 80 سیٹس تھے, 110 ہوئے ہیں. تو ایسے ہر گاؤں میں شروع ہونا, 40 دن بچوں کو پڑھا کر بھیجنے کا. اور اسی لیے شرائط بھی بہت سخت رکھا تھا. گزشتہ سال جو ہے 20 دن کے ایک بار ملنے کا موقع رکھا تھا میں, اس مرتبہ 20 دن کے بعد ملنے کا بھی نہیں. تو بھی تیار ہے ماں باپ. سب ماں باپ کی ایک ہی آواز ہے, کی آواز کہ ہمارے بچی بس بن کر آ گئے تو بس, بن کر آ گئے تو بس. آج بھی تعلیم میں ایک جملہ بولا, ذہن میں آئی سو بات ہے. آج ماں باپ اپنے بچیوں کو سمر کیمپ میں ہو, کہیں پر بھی ہو, پڑھنے کے لیے اس لیے بھیج رہے ہیں کہ جس کو ہم نے پیدا کیا وہ جو ہمارے آنکھوں کا کانٹا بنی ہوئی ہے وہ پھول بن کر آ جائے. لڑکا ہو لڑکی ہو, بہت سارے ماں باپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے آنکھوں کا کانٹا بن گئی ہے وہ پھول بن کر آئے. شکایتیں تو بہت ہے, بولنے پھر تو پھر وقت زیادہ ہو جاتا. تو یہ حال ہے. تو اسی لیے کم سے کم اپنے بچیوں کو سمر کیمپ میں خاص طور پر بھیجنے کی کوشش کریں. سب کریں گے انشاءاللہ. جہاں جہاں پر چلتے ہیں تحقیق کریں. مساجد میں چل رہے ہیں, گھروں میں چل رہے ہیں, لڑکیوں کے چل رہے ہیں, مستورات کے چل رہے ہیں, سب کو بھیجنے کی کوشش کریں. اور خاص طور پر چھٹیوں میں بچوں کا خیال رکھے. باہر بھی دھوپ میں زیادہ نہ بھیجے, ان کے صحت کا خیال رکھے, ان کے تعلیم کا خیال رکھے. تو ہر اعتبار سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا پورا خیال رکھے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.